Good morning, all of you. I, Pooja Chaubey, as a resource person. My topic is 21st century skills. So let's start. 21st century skills comprise skills, abilities, and learning dispositions that have been identified as being required for success in 21st century society and workplace by educators, business leaders, academics, and government agencies and governmental agencies. This is part of a growing international movement focusing on skills required for students to reply changing digital society. Many of these skills are also associated with deeper learning, which is based on mastering skills such as analytic, is researching, complex problem solving, and teamwork. These skills differ from traditional academic skills in that they are not primarily contents knowledge based. Let us begin by asking a question to ourselves: what or who is the center of all activities in society, our nation, and the world? It is not by the individual for a individual. Yes, it is so because all action are taken by on individual for another or for self. This means that an individual in the nucleus of everything that happens or is done, and therefore the development of a society, nation, and the world development of the society, and hand to hand with is the development of the individual. When society, nation, world develops, these has a direct impact upon the development of the individual and vice versa. It is the onset of the 21st century. The entire world has witnessed of era of intense transformation in all areas, whether it is the education, global trade and economy, technology in also technology or society. Recently, the COVID-19 pandemic is also throwing up challenges for an individual to cope with its impacts. Naturally, for such a time as the different skill set is required that would enable an individual to cope up and the success in facing the challenges in real life, leading to his holistic progress. And these skills are addresses on 21st century skills. The 21st century skills are the skills that are required by an individual for his her holistic development so that he can contribute to the progress and development on his society, nation, and world. Empowering our students with these skills are another challenging task, which is both is communities to accomplish while the board has already adopted and integrate several involvability policy and practice of the improver and students with the 21st century skills. It is required that all CBSE should not only have a clear understanding on them but also collective collaboration towards attaining the 21st century in each learn, and the present handbooks
on 21st century skill has been prepared with the some aim. So what is the aim? Do we remember all the marks that we scored in class 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on? No, now? Some of the greatest and most successful people were neither and gathered not to they care enough about to try and remember the gathered item. That means कि जब हम लोग क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पढ़ते थे तो शायद हमारे रिफ्लेक्स कुछ वैसा रिमेंबर बनता है कि हमें मार्क्स कितने आए थे। किसी को 100 आउट ऑफ 100 भी आए होंगे, किसी को 100 आउट ऑफ 40 भी आए होंगे, किसी को 100 आउट ऑफ 70 भी आएंगे। No one perfect, but someone perfect. But we do remember the incidents, experience that we had in school, in market, with friends, in travel, because those experiences have given us various skills and have made us what we are today. In fact, more the skill we gain through our experience, the better the human beings we become and become. Okay. Now, what is the 21st century skill? First of the triple L. So, see there is 21st century triple L. That means ki learning, literacy, life skill. Learning, it is called 4C system. 4C system, that means critical thinking and problem solving. यानी किसी भी सिचुएशन में इजी कैसे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स को बताना। किसी सिचुएशन में वो अगर आ गए हैं तो उसे कैसे इजी वे में हम लोग उसे क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम के थ्रू उसको समझा सकते हैं, वो हमें स्टूडेंट को बताना है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हर बच्चे में अपना एक अलग टैलेंट होता है, उस टैलेंट को निखारना यानी उसे उसका वो हक दिलाना, उसे फ्रंट में लाना और उसे इस चीज के लिए समझाना कि आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंट है और आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है। इससे बच्चे अपने अंदर की छुपे प्रतिभाओं को सामने लाएंगे। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ टॉकिंग, यानी हमें स्टूडेंट्स को ये बताना है कि हम अपने टॉकिंग स्किल से, अपने बात करने के तरीके से कैसे इंप्रेशन बना सकते हैं, कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से हम किस तरह का बिहेव कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कोलैबोरेशन, दैट मीन्स दिया। हम लोग आज एक कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठे हुए हैं अपने एक लक्ष्य के लिए, दैट मीन इन हाउस ट्रेनिंग को प्रॉपरली अच्छा बनाने के लिए। दैट इज अ कॉल कोलैबोरेशन। हम लोग सब एक जगह बैठे हैं, एकत्रित बैठे हैं, सहकार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज अ कॉल कोलैबोरेशन। सो लर्निंग एंड इनोवेशन इज 4CS, दैट मीन्स की क्रिटिकल थिंकिंग, creativity and innovation, communication and collaboration. Now, literacy, information literacy यानी कि किसी बात का इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, जो 21st सेंचुरी में हम लोगों के लिए काफी इजी हो गया। लाइक योर ट्विटर, लाइक इंस्टाग्राम, स्कैनिंग सिस्टम। आज हम यहाँ बैठे बैठे अपने किसी भी पेपर को अदर स्टेट में स्कैन के थ्रू पुट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। जो हमारा पहले था, हम लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, एसटीडी कॉल्स करते थे, बट नाउ अगर आज हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर में हैं वो भी इजीली अपने फैमिली से बात कर सकते हैं थ्रू द वीडियो कॉल। दिस इज द कॉल इंफॉर्मेशनल लिटरेसी। इस मीडिया लिटरेसी यानी कि आज इंडिया जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें अपनी किसी भी बात को प्रेजेंट करने के लिए मीडिया को के थ्रू जा सकते हैं। अगर हमारी वो हक की बात हो या फिर हमारे यूथ का कोई अपना प्रॉब्लम हो तो मीडिया के थ्रू हम लोग अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, करियर एंड लाइफ।
flexibility and adaptability, vitalities and self-direction, social and cross-cultural internations, and probity as the accountability, leadership and responsibility. आज के डेट में हर कोई रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है अपने हर एक क्षेत्र पे, लाइक वो आपका टीचिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सभी लोग अपना 100% देना चाहते हैं. दिस इज अ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं, देन हम लोग अपने आप को 100% वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ नई शिक्षा नीति से क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, गहन चिंतन एवं समस्या समाधान, यानी हम यहाँ कह सकते हैं, उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, समस्या का समाधान भी कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिव इनोवेशन, रचनात्मक एवं नवाचार, यानी नई चीजें बना. हर एक स्टूडेंट्स लाइक हम लोग जिस तरह स्कूल में एग्जीबिशंस करते हैं, एग्जीबिशंस में हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने अपने जो इनोवेशन होता है उसको सामने प्रेजेंट करते हैं, लाइक साइंस के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू. तो ये हमारा रचनात्मक एवं नवाचार हुआ. कोलैबोरेशन, सहकार, जो सब लोग मिलके एक साथ करते हैं. स्टूडेंट्स जो एक साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक कुछ होमवर्क मिलता है टास्क सेक्शन डिवाइडेड के साथ, तो वो लोग मिल करके किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ कॉल्ड कोलैबोरेशन. एंड कम्युनिकेशन यानी संश्लेषण, ये सबसे बड़ी चीज है. फॉर एग्जांपल फॉर सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए हम लोग कहीं गैदर होते हैं, किसी प्रिपरेशन को साथ करते हैं. लाइक अभी कुछ सेशन में हम लोगों ने एक्टिविटीज की जिसमें ट्रेनर एक्टिविटीज करवा रहा और बाकी सारे टीचर मिलकर उसको कोऑपरेट कर रहे हैं. दिस इज अ कॉल्ड कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट आई विल शो सम एक्टिविटी इन बोर्ड. सो ये एक स्किल है जिसको आपको समझना है कि जो छोटे किंडर के बच्चे होते हैं वो लोग को हम किसी बर्ड के बारे में, एनिमल विद साउंड के बारे में कैसे उसे हम लोग अपने क्लासरूम में कुछ यूजलेस चीज के लिए उसको ढूंढ करके हम लोग उसे प्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू. सर इधर बनाइएगा वीडियो, मैं यहाँ से. हाँ, अब मैं यहाँ पे अपनी हैंड्स के थ्रू, जो हम लोग बचपन में बहुत करते होंगे जब हम लोग पढ़ने के टाइम पे टाइम पास करना होता था, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ क्या बना रही हूँ. ठीक है? बर्ड, 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 वेरी गुड. पीकॉक, पीकॉक. वेरी गुड.
देखो ये क्या दिख रहा है, ये मोर दिख रहा है, ये क्या है, उससे उन लोगों में एक्साइटमेंट आएगा और फिर वो लोग भी इस मेमोरीज को और ये जो रिफ्लेक्शन पड़ा बोर्ड पे और वो किस तरह से शो हो रहा उसे देख करके वो लोग भी सीखेंगे। During the later discards of the 20th century and into the 21st century, society has undergone of the accelerations of pace of change in economic and technology. Its effect on the workplace and thus of the demands on the educational system preparing students for the workforce have been significant in several ways. Beginning in the 1980s, government, educators and major identifying skills of impediments and strategies to street students and the workers towards meeting the demands of the changing workplace and society. The current workforce is significantly more likely to change career fields or jobs. Those in the body boom and generation interact the workforce which is the goal of established substantiates and generations are more concerned with finding happiness and fulfillment in this work life. Young workers in North America are now likely to change job at the much higher rate. The probability as much higher, job at much higher, and once every 4.4 year on average with this employment comes and demand for different skill on as that enable people to be flexible and dependable in dependence roles in different career fields. यानी नई अभी जो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है इसमें बहुत सारे हमारे गवर्नर ने बहुत सारी स्किल्स यानी कौशल योजनाएं शुरू की हैं स्पेशली महिलाओं के लिए। घर घर में हर एक तरह का कार्य है जिसमें महिलाएं घर पे ही बैठती हैं और कंप्यूटर वर्क करती हैं, टाइपिंग वर्क करती हैं, कुछ बांस के छालों से कुछ टोकरी उकरी बनाती हैं, अचार बनाती हैं। तो वैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं या फिर वैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हो करके अपने फैमिली को छोड़ के काम नहीं कर सकती हैं तो वो घर बैठे बहुत सारे कौशल योजनाओं को उसके सहयोग से अपना और अपने परिवार का सहयोग करती है। As Western economics have transformed from the industrial base to the service-based trades and vocation have smaller roles. However, specific hard skill and mastery of particular skill sets with a focus on digital literacy are increasingly his demand, and people skills that involve instructions, collaboration and managing others are increasingly important. Skills enable people to be flexible and adaptable. It is different roles or in different fields those that involve processing. यानी कि अलग अलग उनको जिस स्किल्स में जो कौशल योजनाओं पे जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनपे उनको जिस पे इंटरेस्ट होता है वो उस तरह की योजनाओं में भाग लेती है। नाउ मैं भी एक एक्टिविटी कराऊंगी जिसमें मैं कुछ टीचर्स को आगे बुलाना चाहती हूँ।
कुछ मुहावरे पूछूंगी और आपको बताना है उसका आंसर। स्टार्ट। लोहा खींचू ऐसी ताकत है, पर रबर मुझे हराता है। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। देख लिया आप। ओके। पूंछ कटे तो सीता, सिर कटे तो मित्र, मध्य कटे तो खोपड़ी, पहेली बड़ी विचित्र। आप लोग को भी बोलना, आप लोग भी पीछे से बोलिए। ठीक है, ये बहुत इजी है। 3 अक्षर का उसका नाम, उल्टा सीधा एक समान, आवागमन का प्रमुख साधन, बोलो बच्चों उसका नाम। वेरी गुड। देखिए इजी था, आप लोग बता दिए। इजी बताइए। लाल घोड़ा रुका रहे, सफेद और काला घोड़ा भागता जाए। लाल घोड़ा रुका रहे, सफेद और काला भागता जाए। लाल घोड़ा है, ठीक है, जो रुका ही रहता है, और सफेद और काला जो है वो भागता रहता है। आग और धुआं। लाल जो रहता है वो वहां पड़ा रहता है, धुआं, और राख जो है वो हट जाता है। नेक्स्ट। 2 सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बिगड़ जाए तो दूसरा ना काम आए। दो सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बिगड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। हाँ, थोड़ा पास में है और बोलो। यस, जूता। ठीक है? हाँ, चप्पल छोटा। एक जूता खो गया तो दूसरा का कोई ये नहीं। चप्पल की। यस। ओके। प्रथम कटे तो दर बन जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मैं हूँ कौन। वेरी गुड। और किसी को पहले कुछ याद आ रहा है तो यहाँ के पूछ सकते हो। ठीक है? एक और। पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। हरा आटा लाल पराठा। हरा आटा लाल पराठा। गले जनेऊ माथे बिंदिया, गले जनेऊ माथे बिंदिया, चाल चले अलबेली, जिसका लोग तमाशा देखे उसका नाम कहे। गले जनेऊ माथे बिंदिया, चाल चले अलबेली, जिसका लोग तमाशा देखे उसका नाम कहे। गले जनेऊ माथे बिंदिया, चाल चले अलबेली, जिसका लोग तमाशा देखे उसका नाम कहे। लट्टू। और किसी को पूछना है? राखी मैम।
बहुत सुंदर सी ये पहेली है और एक समय पे ये गाना बनकर भी आया था सामने। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में 2 साला ओढ़े खड़ी थी। थैंक यू। एक और है, कटोरे पे कटोरा, एक चिड़िया अट, उसका पांच दोनों पट, उसका फल रिगुदार, उसका मांस बड़ा मजेदार। क्या है? Yes, Anna, Anna is right answer. Very good. क्या मनीषा नाम? एक पहलू दे। हरा पहाड़, लाल समुंदर, हरा पहाड़, सफेद समुंदर, लाल खून, काला कीड़ा। Yes. Yes, sir. Please come. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 11 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक राजा के कोने में नींबू की धार। और कोई? और किसी को पूछना है? रेशम? और किसी को? चलिए, थैंक यू। राधा की धनी में Now, next. 24th century. इसमें सबसे पहले हम लोगों को आता है दिमाग में एक ही बात, डिजिटल लाइफ। यानी कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में डिजिटल स्टेज पे हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं। लाइक कोविड टाइम वी आर सफरिंग नाउ, सो अभी भी हम लोग कोविड में सफर कर रहे हैं। और 21st सेंचुरी में ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस किया जूम मीटिंग के थ्रू। ये भी एक स्किल्स है जो बहुत लोग मोबाइल ऑपरेट करना नहीं जान रहे थे, वो भी मोबाइल ऑपरेट करना जान लिए। घर घर में मोबाइल फोन आ गए, एंड्रॉइड फोन। आप अपने किसी बात को ट्विटर तक ले जा सकते थे। घर घर में जो स्किल्स के ड्यूरिंग सरकार ने शिक्षा नीति पे बहुत सारे कार्य किए, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि अब हर घर की बेटियां स्कूल जाएंगी, उनको फैसिलिटीज दी गई कि जब वो क्लास 8 तक पढ़ लेंगी तो उन्हें साइकिल प्रोवाइड होगा। जब वो आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहेंगी उसके लिए सरकार ने उन लोगों के अकाउंट्स में पैसे डालना शुरू किए, ताकि और सबसे बड़ी बात कि जो भी हमारा गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मिड डे मील चलाया गया, जिससे कि जो भी लेबर और कूली के बच्चे थे जो घर पे ही रह करके अपना टाइम बर्बाद करते थे, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा स्कीम चलाया गया कि वो स्कूल भी आए, अपना पेट भी भरे और 2 अक्षर भी सीख कर जाए, जिसके लिए हमारी सरकार ने मिड डे मील चलाया, जिसमें उन्हें पौष्टिक भोजन दिया गया। और शायद इस गवर्नमेंट रूल से गांव-गांव के बच्चे अब स्कूल जाते हैं, और इसी पे हमारे गाना निकला था, स्कूल चलेगा। इस स्कूल में जाने के बाद बच्चे जो हैं डिजिटल वे से काफ़ी इंटैक्ट हुए, यानी कि जो बच्चे पहले कंप्यूटर का सी भी नहीं जानते थे वो अब कंप्यूटर चलाते हैं। वहाँ पे तरह तरह की कैंपेनिंग होती है, लाइक गर्ल्स के लिए
बच्चों के लिए कैसे आप, यहाँ तक कि उन गवर्नमेंट स्कूलों में टाइपिंग का भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया जो निःशुल्क है, वो निःशुल्क है और ये सरकार की तरफ से। जो लड़कियाँ जो अपने पीरियड्स प्रॉब्लम में बहुत कुछ बातों को नहीं जानती थी, उनके लिए कैंपेनिंग किया गया जिसमें बहुत सारी लेडीज टीचर आके उनके बारे में उन्हें समझाती थी कि कैसे हाइजीनिक ये को हम लोग दूर रख सकते हैं और किस तरह हम लोग आगे अपने शरीर को पोषण से भर सकते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। नाउ डिजिटल एज लिटरेसी, बेसिक significant economic and technological literacy, virtual and information literacy, multicultural and literacy, global awareness के बारे में भी हमारी सरकार जो है तरह तरह का वीडियो जो यूट्यूब में डालती है। उन बच्चों के लिए जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनसे उनको क्या अवेयरनेस कराना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है हर एक स्कूल्स में कैंपेनिंग करवाती है कि ये जो है उन बच्चों के लिए जो अभी एज अ ट्रैक 14 इयर्स ओनली और वो इस ट्रैक पे चले जा रहे हैं, जो अपने पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और नशे की ओर जा रहे हैं, इसके लिए भी काफ़ी स्किल्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट ने शुरू करवाई थी। Next, effective communication, teaming collaboration and interpersonal skill, personal, social and civil responsibility, interactivity, communication is high productivity and quality state of the art result. Ability to provide, plan and manage for result, effective use of real world tools, the ability to create relevant high quality products। जैसे कि 21st century skills में सरकार जो है उन बच्चों के लिए जो अभी मात्र 6 से 7 साल के हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में किताबों से संबंधित टूल्स को प्रोवाइड कर रही है। बच्चे ये तो जरूर जान रहे हैं A फॉर एप्पल, बच्चे B फॉर बॉल भी जान रहे हैं, C फॉर कैट भी जान रहे हैं, लेकिन जब वो टूल्स को वो देखते हैं, मटेरियल्स को देखते हैं, तो उनके माइंड में वो अल्फाबेटिक वर्ड्स विद पिक्चर्स जो होता है वो पूरी तरह से सेट हो जाता है। वो बच्चे जब रोटी और सब्जी जिसको वो खाते हैं, उनको भी वो वहाँ पे कैंपेनिंग के थ्रू टीचर्स बताते हैं कि ये रोटी जो है दिस इज कॉल्ड चपाती, ये जो सब्जी हम लोग खाते हैं दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल। वो बच्चे जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को नहीं जानते थे, सरकार उन स्कूलों में कंप्यूटर भी प्रोवाइड की है और बच्चे आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड digital technology. The 21st century skill gaps are attitude skills, knowledge and the driving force of economic growth and social development for any country. 21st century skills gaps में during COVID सारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गई, बिकॉज लॉकडाउन में जितने भी बिजनेस मैन थे वो लोगों का भी सारा जो काम था वो बंद हो गया था। बट इस टेक्नोलॉजी के थ्रू 21st सेंचुरी स्किल्स में वर्क फॉर होम विथ योर लैपटॉप, टैब, मोबाइल, जिसे सरकार ने शुरू करवाया। इनफैक्ट इस ड्यूरिंग में सबसे ज़्यादा आई थिंक सो मोबाइल्स ही हमारे यहाँ सेल हुए, बिकॉज ऑफ जो भी इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग जहाँ जो ठहर गया वो अपने काम पे नहीं जा सकते थे। एज अ 4 to 5 months दे ऑल गवर्नमेंट्स एज डिसाइडेड कि हम लोग इसको वर्क फॉर होम करवा के अपने इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हम लोग फिर आगे बढ़ा सकते।
What is 21st century skill? I will show you video. Hello and welcome to Teachings and Education, 21st Century Learning and Life Skills. Credit and information found at Partnership for 21st Century Learning. A link to their site will be provided below. Teachers must help their students develop specific work and life skills. Now, why should educators care about 21st century learning? Schools have a responsibility to nurture their young students into functioning 21st century citizens. 21st century skills are absolutely essential for everyday living. These skills are necessary for life, work, and citizenship. Understand that life outside of school is nothing like the classroom environment and requires different ways to succeed. Teaching these skills to students will help them become successful later on in their lives. Partnership for 21st Century Learning offers a framework that focuses on student outcomes, which are your goals and learning objectives. There are 4 components, and the first one is content knowledge and 21st century themes. School curriculum will have students learning subjects such as mathematics, science, world geography, civics, reading and writing, and more. Students must master these core disciplines just to graduate high school. Students must learn at a high level by recognizing and understanding the 21st century themes within these key subjects. Environmental literacy and all the factors that affect it, economic, business, entrepreneurial, and civic themes, global awareness, and communicating around the world. And lastly, health literacy and taking responsibilities for one's personal health. Now on to the second student outcome, which is learning and innovation skills. These skills are broken down into the 4 C's. The first C is creativity. Students must come up with innovative ideas and then put those ideas into action. Next is communication. Teach students to articulate their thoughts effectively using oral and written communication strategies. The third C is for collaboration. Have your students practice soft skills and working efficiently with diverse teams. And the last C is for critical thinking. That is being able to analyze and evaluate evidence, as well as use deductive reasoning for any of life's situations. We now move on to the third of 4 student outcomes: information, media, and technology skills. Students need to be able to access all of the information available to them, and there's a lot of information out there. Although students may be adept in social media, our children should have an understanding of media messaging and how to create media products. Teachers still need to keep students up to date with the rapid changes in technology. They should be able to use digital technologies as communication and networking tools, as well as have an understanding of the dangers of technology. Students can use the technology that they have to manage information in a beneficial way. And the last student outcome, which is life and career skills. And there are many careers out there. Now, when a student enters the workforce, they must be flexible and able to adapt to changes. As adults, we know how important it is to adapt to new and challenging situations. Some more life and career skills, besides being flexible, include having initiative and self-direction, social and cross-cultural skills, having productivity and accountability, and lastly, leadership and responsibility. After student outcomes, 21st century learning is broken down into support systems for schools. First off, schools should have 21st century standards. These standards should emphasize understanding and depth of knowledge, while building relationships and understanding across various academic subjects and themes. Second, assessments of 21st century skills. This includes the Big 3, summative, formative, and diagnostic assessments. Also included should be standardized test evaluations. Third on the list is 21st century curriculum and instruction. That means teaching 21st century skills in the context of the key subjects and core disciplines. Next up are the 21st century learning environments. Here teachers should create real-world type learning environments for their students.
and they can do this through project-based learning and cooperative learning experiences. And lastly, we have professional development for 21st century learning. These types of professional development for teachers should be directed in various ways. Teachers can integrate these 21st century skills into their classroom. So, right now I just want to say thank you for your time. Subscribe to this channel, check for resources below, and please like and share this video. Now I am again with you. This time we have about a ready reckoner of 21st century skill for all of you. We study a lot research, various digital resource and prepare this ready reckoner. This client, all readers may please note that we have used several facts, cartoons and images which have been taken from various resources on the internet. All these have been used by us for education purpose only and not for any kind of commercial use. We are grateful and for this. Now, acknowledgement. अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ एडवाइजर हैं, कुछ क्रिएटिव इनपुट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पैटर्न, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री संजय धोत्रे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एंड मिसेस अनीता कारवाल, IAS, Secretary Department of Social Education, Minister of Human Resource Development, Government of India. इन लोगों के बारे में जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो 21st सेंचुरी स्किल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में इन लोगों को अपना अपना एक वर्ड और अपना अपना एक वर्क दे दिया है। इसमें एडवाइजरी और क्रिएट इनपुट्स में है our graduate to Mrs. Anita Karwal, IAS, of the advisory of the creative and handbooks during her leverage of chairperson Central Board of Secondary। ये CBSE की सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी की ये चेयरमैन हैं जो IAS भी हैं। एंड गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए गवर्नर ने श्री अनुराग त्रिपाठी, IRPS, सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनको चुना है। डॉक्टर विश्वजीत साहा, डायरेक्टर स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नाउ एडिटोरियल इनपुट्स एंड एडवाइजर, डॉक्टर जोसेफ एमनुअल, डायरेक्टर एकेडमिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। Now, value orders as coordinators, Dr. Prayag M. Singh, Joint Secretary, Academic Unit, Central Board of Education. And last one, Professor R.P. Singh, Department of MEL, Lucknow University, and Dr. Monali Bhattacharya, Associate Professor, IIT नोएडा। तो जिस तरह से 21st सेंचुरी स्किल्स पे हमारे जो गवर्नर हैं वो अपना डे बाय डे वर्क कर रहे हैं, तो उस तरह उन लोगों ने कैटेगरीज के ये पे सबको डिवाइड किया, जिसमें हमारे काफ़ी वेल क्वालिफाइड मिनिस्टर है, जिसमें हमारे IAS अनीता कारवाल जो कि यहाँ डिपार्टमेंट की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से हैं। तो इन लोगों के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्किल्स को, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें किस तरह का हमें आगे और स्किल्स को प्रोवाइड करना है, बच्चों में जो
अंदर की प्रतिभाएं हैं उनको कैसे आगे जागरूक करना है। स्पेशली गर्ल्स के लिए हम लोगों को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसे कैसे हमें सक्सेसफुल बनाना है, इसके लिए इन सारे मिनिस्टर्स को अपने अपने वर्क के साइड डिवाइड किया है। साथियों 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। Next,
कोविड के ड्यूरिंग हुआ है और हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से देखा कि ये डिजिटली पूरा जो था कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ था, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और ये जूम मीटिंग के थ्रू हो रहा था। दिस इज अ कॉल 21st सेंचुरी स्किल्स। नाउ मैं एक एक्टिविटी कराऊंगी। इस एक्टिविटी में मैंने बहुत सारे चिट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को उसको एक एक करके उठाना है और इस चिट में जो भी लिखा है वो करना है। ये क्या है? ये स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंट है जो इस नई शिक्षा नीति में हम लोगों को मिलके अपने स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के बच्चों को, क्योंकि एवरीवन यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे ऑल आर परफेक्ट, उन लोगों के अंदर काफ़ी टैलेंट है बट वो अपने हेजिटेशन के कारण उसे सामने नहीं ले पाते हैं। तो सो एवरीवन प्रॉमिस दैट टाइम कि हम लोग इस शिक्षा नीति को आगे करते हुए अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, उनके हेजिटेशन को दूर करेंगे। तो ये चिट जिसके पास भी जाएगा, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, वो सामने आएंगे और उस चिट में जो भी लिखा है उसे करके दिखाएंगे। थैंक यू। Whatever you want. इस मेरी मैम को दीजिए हिंदी का। मैम क्या क्या देख लीजिए, जिससे ये अपनी Ranjana ma'am, please come on front. Okay, give me a check. Give one rhyming word for crime. Just for crime. Very good. Next, Sangeeta ma'am. Give me a check. Okay, very nice. What are you going to do this summer vacation? क्या क्या करना चाहती हैं समर वेकेशन में? I want to go Maldives. Maldives. In summer vacation, I want to go some natural places, just like Haridwar, Uttarakhand, and in summer vacation I am enjoying lots of fun, eating lots of ice cream too. Thank you. Very good. Clap. Next, Resham Balana. Okay, name Jharkhand's national flower and tree. Thank you, ma'am. I go to my point for Jharkhand and national flower of Jharkhand and national tree of Jharkhand. So national flower of Jharkhand is Palas, national tree of Jharkhand is Sal, and I would like to say something about Jharkhand.
our Jharkhand is known for its beauty and heritage. It is very beautiful place. You would listen that some place that is called Netherhat. You would listen Netherhat. That was not Netherhat. When the British came here, they seen there a beautiful place and they have seen nature's heart. That is said by them, nature's heart. But here is not environment of English, so all have this substance that nature's heart. So it named nature's heart. That was nature's heart, and it is very beautiful and it is with us. So that is now the tourist place and very beautiful place, and we must feel proud that we are the people of Jharkhand. Thank you. Very good. तो झारखंड की बात हो, ये मेरी बात हो जाए जोहार। नेक्स्ट श्वेता मैम प्लीज कम। Speak 3 lines about cow. The cow is pet animal. It has 4 legs, 2 eyes, and 2 horns, a big tail. It gives us milk. It is very useful. Wow, very good. Now next to Raki ma'am. Write the table of 9. That's what, ma'am. Table of 9. 9 पंजा 9. बोलते जाइए तो बोलेंगे, रिपीट करेंगे। इजी तरीका। मैं राइट Nine 9 are 81. 9 10 are 90.
that time step Who is next? Come on, friend. Vicky. What is your favorite childhood memory? जब मैं फर्स्ट टाइम पे कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो टीचर ने मुझसे बोला कि आप टेबल सुनाइए 15 का। तो मेरे को पहले मैं हिंदी में पढ़ रही थी तो हिंदी में बोलती 15 40 के 60 दाम 70 95 70 75 लाख 30 9 35 15 150 My teacher is gone understood. We also. Yes, exactly. We also. Okay. We also put a no, but it's funny. Okay, very nice. Proud of you. Next one. Eknata ma'am. Come on. Describe your sister's personality in 4 lines. My sister name is Priya. She is a very beautiful girl. She is studying in class 9 and she wake up early in the morning. She is very good student. Thank you. Okay. इस एक्टिविटी से क्या आप लोग समझे? जया मैम, प्लीज कम। और किसी का नहीं ना? अभी ना है। Tell us something about your parents. Good morning, all of you. I have a topic about parents. I have my parents. They are very good, supportive, and I love my family very much. I am here because they are every time supporting me. Thanks to my parents to supporting any time, everywhere when I am I have need of their support. Thanks to my parents and all of parents. Thanks. Thank you so much. Yes, without parents we are zero. Is that right now? Yes. Okay. So इस एक्टिविटी से हम लोगों ने ये जाना कि जो भी स्टूडेंट को हेजिटेशन है फ्रंट में आने के लिए उन स्टूडेंट्स में ये कुछ क्रिएटिविटी करके हम लोग उनका हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। That means कि they are excited about my topic. Now my turn. तो उन लोगों में ये सामने आने की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। Okay? Thank you. Now finally meaning of 21st century skill. It is a broad set knowledge, skills, work, habits and character traits that are believed to be critical importance to success in today's world. आप में अगर बिलीव पावर है, आप में कोई कैरेक्टर है, आपके अंदर कोई स्किल्स है, तो आप जो है इस पूरी दुनिया से आगे बढ़ने में, सक्सेस पाने में कभी भी पीछे नहीं रह पाओगे। एंड फाइनली now I am ending my session and firstly I thankful to my team Ranjan sir, Samsei sir and my lovely and beautiful teachers and for male members smart teachers। आप लोग उदास मत होइएगा, आप लोगों को भी क्रेडिट दे रही हूँ। So am I ending my session? This is a 21st century skills. Thank you.